हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो सर, व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज ना दैट द सेम क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड बाय numerous students again and again. Again and again they are raising the same question that will there be exams, right? Will there be exams? Whether exams are going to be conducted or not? Examinations, if they are not going to be conducted, is the institute which is waiting for third wave, तीसरी लहर का इंतजार करा जा रहा है क्या? उसमें लोग हमारे जाके पेपर, right? Apart from that, one more thing is there in mind of students. The examinations are going to be tough this time. Tough is only going to be there for those students who are not preparing. The students who are not focused towards studies, जिनको पढ़ाई करनी नहीं है, उनके लिए तो पेपर हमेशा टफ है ना यार, है ना? एनीवेज, उसके बाद पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? नेक्स्ट इज, कैन वी एक्सपेक्ट डेट शीट? डेट शीट कब आएगी सर? और मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, आई कैन नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज. Each and every answer will be given today only. ठीक है? I mean, see, I do not have any, you can say, relation with, in directly or indirectly terms, with ICMAI. On the basis of the various sources which we have, I mean, some of our friends, or you can say the people who are working in, the people who are my friends particularly. So on the basis of that, we are going to draw some conclusions. They are just going to be my recommendations, that's all. So, will your exams be conducted? Yes, absolutely correct. You will have your exams. When? I will stick to my words. जैसा मैंने पहले बोला था, अगस्त एंड से लेकर सितंबर स्टार्टिंग, this is going to be the time when your exams must be conducted, right? Ab, sir, if there is a possibility that the exams are going to be merged with December attempt, no. At this point of time, I cannot find any such chances over there. RT-PCR report will be required for conducting exams. No, that's not. It's not true. ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीन लगवा कर आओगे या RT-PCR करवा के आओगे then only you will be able to, I mean, sit in examination hall. ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है. There is no notification yet which tells us that the exams are going to be cancelled. Keeping this into consideration, keeping this time, each and every factor into consideration, exams will take place. We have taken a lot of factors. I'm not going to show them over here. Will the examinations going to be tough this time? Because last time when the examinations were conducted, they were very easy. वो बहुत आसान थे यार, है ना? बच्चों ने कहा सर बहुत आसान है. स्कोर देख लो ना लास्ट टाइम का, 97 अकाउंट्स में आया हमारे यहाँ पे. अकाउंट्स में एफएम में 92 आए, ओएमएसएम में लेता हूँ 88 बच्चे लेके आए. लॉ 79 के आसपास कुछ हाईएस्ट था. सो यू कैन इजीली फाइंड दैट द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो देयर इज वन थिंग व्हिच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड कि पढ़ना तो पड़ेगा. यू हैव टू स्टडी. Examinations are going to be tough. You may feel like that they are tough if the examinations are going to be there in offline mode, right? So in that situation, the exams you will find them lengthy. वो लेंदी हो सकते हैं. लॉजिक बीइंग, क्योंकि सर आपने अभी तक प्रैक्टिस करी नहीं होगी. और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, आर यू रेडी फॉर एग्जामिनेशंस? द पीपल हु वांट, ऑल द टाइम दे आर सेइंग ना कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा. सो इन दैट सिचुएशन, आर यू रेडी? आई गिव यू सर्टेन पैरामीटर्स जहाँ पर आप चेक कर सकते हो बहुत इजीली कि आपने पढ़ाई कितनी कर ली है. निकाल लोगे इस बार? और आप अभी जहाँ बैठ कर, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियो, राइट? So, at this point of time, what a particular student who is going to achieve rank, what he or she is doing, वो क्या कर रहा होगा इस टाइम पे? बैठ के ये सब देख रहा होगा क्या? सर मतलब आई एम सॉरी, आई शुड नॉट यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड्स, बट वो बैठ के ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा होगा? नहीं सर, वो सिर्फ फोकस होगा अपनी पढ़ाई पे. उसने देख लिया कि हाँ, आई नीड टू बी रेडी. सबसे पहले उसने मॉड्यूल कंप्लीट किया होगा, जैसे कि मैं क्लासेस में हमेशा से ही करवाता हूँ. RTP करी होगी, MTP करी होगी, एंड ऑल द टाइम एडवाइजेबल लास्ट 2 years क्वेश्चन पेपर्स. The golden rule of passing your CMA exams. Very easy. Apart from that, the examinations are going to be conducted online mode or offline mode. Online mode can be can be an option for foundation students. But when it comes to inter and final students, the option which is going to be there should be offline mode. Okay, moving ahead and talking about the next part. So examinations are going to be tough. See,
whenever a particular examination is going to be there, जब भी पेपर होता है ना तो कुछ चीज़ें होती हैं, there are certain parameters on which the examinations are being conducted. ऐसा नहीं होता है that each and every question, हाँ, what you can say कि implied questions ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पर, situation based questions, the quantum of these kind of questions can be increased. There is, I mean, no second opinion कि ऐसा कुछ नहीं. This can be implied. Apart from that, if we talk about any subject question paper, I'll discuss some of the question papers with you as well. कुछ question papers को लेकर आऊँगा, वहाँ बात करेंगे. But you will find 20 marks के आसपास, 20-25 marks के आसपास paper is very easy. ये अभी तक इंस्टीट्यूट का पैटर्न है. दिस पैटर्न इज गोइंग टू बी देयर, इट विल रिमेन इंटैक्ट अंटिल अनलेस यू आर गोइंग टू गेट अ नोटिफिकेशन कि हमने पैटर्न चेंज कर दिया. लगभग 50 मार्क्स के आसपास ऐसा पेपर आता है विच इज एवरेज, राइट. एंड ओवर हियर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स के आसपास ऐसा पेपर आता है विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, right, which is going to be difficult. Now keeping these things into consideration, if the paper pattern is going to remain same, अगर वो सेम रहता है तो सर ये आपका पैटर्न है, राइट. इम्प्लाइड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं, आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू दैट, राइट. उनको देख सकते हो, अदरवाइज आई मीन आई विल पुट देम ऑन द एंड स्क्रीन इटसेल्फ. अब आगे चलते हैं सर. एग्जाम्स कब होंगे? आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग. सर व्हेन वी विल गेट द नोटिफिकेशन, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द डेट शीट, इस टाइम तक you should get it maximum by July end. Maximum by July end you should get it. Although it's high time to give any kind of notification, I don't know what ICMAI is waiting for. I mean they are all the time, I mean they are early movers, they are early movers, but I don't know why they are late this time. But they will pick up, they will pick up before July end. You will get the notification related to examinations, this is for sure. दिस वॉज, आई मीन दिस इज द सेम स्टेटमेंट जो मैंने पहले भी दी थी कि जुलाई एंड तक रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट सब बच्चों का आ चुका है. नाउ दे विल गिव यू द एग्जामिनेशन डेट शीट, ऑप्ट आउट ऑप्शन मिलेगा. और बहुत सारे बच्चे होंगे आई मीन हु आर गोइंग टू फोकस अपॉन दैट, सर वी आर गोइंग टू टेक ऑप्ट आउट. ऑप्ट आउट इफ in case if there is a strong reason behind that, you can take the opt out, but until unless मजे मजे में opt out मत लेना, because that delays your success, that delays your, I mean, job, that delays your salary, that delays each and everything. जहाँ भी आप वो सर वो 6 महीने और डिले, फिर और डिले ऐसे होता रहेगा, right. Here anyways it's all upon it, it's all about your call. If you want to be successful at 24, or you want to be successful at 28, or if you don't want to be successful, you don't want to be a CMA, right. Or let me correct my words, if you want to be a CMA at 24, 22, you want to be at 28, or you don't want to be, because opt out करते करते ऐसी हैबिट पड़ जाएगी that you are going to leave your examinations कि मैं नहीं पढ़ रहा. Anyways, and please, there is one saying which on which I straight away believe, that don't focus upon distractions. Don't focus on distractions. The mobile phone which you have been using a lot of times, I don't know how you guys are dealing with that. If your morning starts with those kind of social networking वाली चीज़ों से start होती है ना, तो अपने आप ही सुबह सुबह start ही मैंने कैसे करा, इंस्टाग्राम का पेज खोला, वाह, राइट. तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ, तो वहीं से दिमाग घूम गया. Instead, focus on career, focus on your problems which you have. Problems पे focus नहीं कर रहे हो आप. Problem क्या है? अभी एग्जामिनेशन क्रैक करना, ये प्रॉब्लम है. यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा है कोई, क्या कर रहा है, मजे से डिस्ट्रैक्शन पे फोकस कर रहे हो. यहीं पर ओवर हेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे मजे से बैठ के अपना फोन चला रहे हैं, राइट, उनको पता है उनके साथ क्या हो. और इस टाइम पे जो बच्चे हैं दे नो दैट कि ठीक है, देखो, how a student who is going to score a rank, or who is going to score more than 60-75 marks in each and every subject, how they are thinking right now, right. See, in every classroom दो टाइप के बच्चे होते हैं, दो टाइप के बच्चे होते हैं, right. The very first student you can say he is Chintu and he is Mintu. चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू इज फोकस्ड ऑन स्टडीज. ही नोज दैट वेरी वेरी वेल कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मे बी इन सितंबर और बाय एंड ऑफ सितंबर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी देयर, एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड. Whereas Mintu is like, he is a lazy person. He is a lazy person. He is like कि ठीक है, whenever date sheet will come ना, I am going to look after the date sheet, then I am going to decide when I have to start studying. Date sheet देखूंगा, उसके बाद शुरू करूंगा, है ना. तब तक when the Mintu is going to start his revision, or you can say completion of course or the completion of syllabus, तब तक Chintu
टिल दैट टाइम चिंटू कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर चुका होगा। बहुत ईजी होगा, देखना चिंटू वुड हैव डन द होल रिविजनल लाइन फॉर 3 to 4 times। तब तक वो रिवाइज कर चुका होगा। अब वो रिवाइज कर चुका होगा तो चांसेस ऑफ पासिंग एग्जाम्स किसके बढ़ जाएंगे? सर चिंटू के। हु विल गेट मोर नॉलेज? नॉलेज किसके पास अच्छी होगी? सर चिंटू के। हो सकता है, अच्छी बात है, पेपर ये बच्चा भी निकाल दे, नॉलेज इसके पास भी हो, पर एज कंपेयर टू चिंटू क्या इसके पास नॉलेज होगी? ओके, chances of getting a job or a proper internship at a good place, who will be getting more, where the probability is higher? Definitely sir, Chinta. So why you are wasting your time? You will find that Chintu is going to score a rank, Chintu is going to secure a rank, whereas Mintu will not find himself anywhere, because that is all about that. Don't waste your time at this point of time यार। if you are wasting it and you are not focused about studies, ठीक है, ये सब चीज़ें देख रहे हो, पेपर टफ आएगा वो आएगा। गोल्डन रूल मैं बता चुका हूँ फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम, लेट इट बी लाइक सी एम में जो भी है, मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता। नथिंग गोज बियॉन्ड ICMAI मॉड्यूल। क्लास में सबसे पहले मॉड्यूल ही कराया जाता है। हाँ एग्जैक्टली नहीं करा सकते तो अपने नोट से होता है। मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। अगर मॉड्यूल करके जाओगे यू विल हैव, आई मीन दैट मच कॉन्फिडेंस दैट आई वाज लाइक कि 98 मार्क्स का पेपर मेरे को आता था। अब 98 मार्क्स का पेपर अगर आपको आता था तो फिर प्रॉब्लम है, right? But do remember, every rank holder was a beginner just like you, but he started and he has done the same thing। उसके पास भी सेम रिसोर्सेज हैं इस चिंटू के पास और मिंटू के पास, राइट? चिंटू के पास और मिंटू के पास सेम चीजें हैं यार। बोथ ऑफ देम हैव दैट ICMAI मॉड्यूल, दोनों के पास है, ठीक है। RTP सबके पास है, MTP सबके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबके पास है। नहीं है तो कोई बात नहीं, गो एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, यू विल फाइंड इट ओवर देयर एब्सोल्युटली फ्री। ये तो मिल ही जाते हैं ना यार, ये तो हम लोग दे ही रहे हैं। फ्री MCQ लाइब्रेरी भी है, प्रैक्टिस कर लो इतने बैठ के, राइट? एंड so toppers, they are not doing anything different, they are doing the same aspects, they are doing the same things, but they are doing it differently। they are not, I mean, giving their time to, ठीक है, इंस्टाग्राम को बहुत सारा टाइम दे दिया। टॉपर के घर में मेहमान नहीं आते क्या? आते होंगे। टॉपर के घर में शादी नहीं होती क्या? होती होगी। टॉपर के घर में कोई बीमार नहीं होता क्या? होता होगा। बट इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी विच इज गोइंग टू मेक डिफरेंस। योर कंसिस्टेंसी कैन मेक यू चिंटू, और योर इनकंसिस्टेंसी कैन मेक यू मिंटू। सो फोकस अपॉन योर स्टडीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स आर गोइंग टू बी देयर ना यार, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, राइट? सितंबर में नहीं होते, चलो मैं तो कह रहा हूँ होंगे ही सितंबर में, अगस्त एंड में या सितंबर में, सितंबर स्टार्टिंग के अंदर। चलो ठीक है, मेरी बात मत मानो, सितंबर में नहीं होते, ठीक है, नवंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, कभी तो होंगे। तो सर सेम चीज़ को पढ़ता रहूँ? यस, क्योंकि अगर आप चिंटू हो तो आप सेम चीज़ को बार बार अपने आप ही पढ़ रहे हो। इफ यू आर मिंटू, इफ यू आर मिंटू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर हैप्पी, अरे सी नई वेब सीरीज आई है, यू आर हैप्पी, तो भी बेटा सेम पढ़ना ही पड़ेगा। इफ एनी स्टूडेंट इज, if I mean if his result is negative, अगर वो फेल हो जाता तो वो दोबारा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आपकी मर्जी है, अभी दोबारा पढ़ लो या टाइम वेस्ट करो, ऐसा ना हो रिजल्ट नेगेटिव आ जाए फिर दोबारा पढ़ना पड़े, है ना? होता है ना? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम एवरी स्टूडेंट हैज बीन टॉट द सेम थिंग। बस वो टॉपर ने क्या किया होगा? कंसिस्टेंसी दिखाई होगी, राइट? आई होप आपको मेरा मैसेज मिल पा रहा होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड मूविंग ऑन टू लाइक नेक्स्ट वीक से बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड initiatives I have taken, right? I'll come up with some kind of revision classes for you guys. Yes, some kind of revision classes are going to be there straight away on YouTube channel. We'll publish some kind of, I mean, fast track revision classes, and I will share them on YouTube, specially only for my CMA students, ठीक है? ये आपके साथ शेयर कर दी जाए, डोंट वरी अबाउट दैट। इन केस आई मीन फोकस अपॉन द टॉपिक्स और द सब्जेक्ट्स विच आई हैव बीन टेकिंग, बट फिर भी अगर इन केस इफ यू हैव एनी टॉपिक, और आई मीन माई टीम इज पर्टिकुलरली वर्किंग अपॉन दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स विच आर मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, जो बार बार पेपर में आते रहते हैं, वो तो हम लोगों ने ढूंढ ही लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मोस्ट वेटेज, द चैप्टर्स विच आर गोइंग टू कैरी द मोस्ट वेटेज, सबसे ज़्यादा मार्क्स के आने वाले, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, ठीक है? इन केस अगर आपको कहीं पर लगता है एनी चैप्टर विच यू आर फाइंडिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क अपॉन इट, बट डोंट वरी अबाउट दैट।
But please study, please study. Don't waste this time because time is just like एक बार निकल गया तो कुछ नहीं हो सकता सर, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. Okay, so thanks for your time. Bye bye. Take care of yourself. Keep learning, keep growing. बढ़ते रहें, बढ़ते रहें. Stay tuned.